میں نے پوشالی کے کان میں سرگوشی کی، جہاں سے ہمیں گھسٹ کر آگے بڑھنا ہے، لیکن اتنی آہستگی کے ساتھ کہ سرسراہٹ پیدا نہ ہو۔ پوشالی نے اسبات میں سر ہلا کر میری بات کی تصدیق کی۔ میں نے اگلی ہدایت کی، حتی المقدور کوشش یہ کرنا کہ گولی نہ چلانی پڑے، زیادہ سے زیادہ فاؤنٹن پسٹل اور خنجر سے ہی کام چلانا، اور وہ بھی اس طرح کہ مرنے یا بے ہوش ہونے والے کے منہ سے آواز تک نہ نکل سکے۔ پوشالی نے اس پر بھی سر ہلایا۔ میں نے کہا بس اب اللہ کا نام لے کر روانگی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پوشالی دھیرے سے بولی لیکن بارودی سرنگیں۔ میں نے کہا کیا تم خوفزدہ ہو؟ پوشالی نے ایک عزم کے ساتھ کہا نہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ میں نے کہا فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کا کام کوشش کرنا ہے، اگر ہمارے مقدر میں فتح ہے تو ہم 100% جہاز سے کامیاب لوٹیں گے۔ پوشالی نے فوراً میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ نہ کرے، تمہارے حصے کی موت تو میں نے اپنے لیے مانگ لی ہے۔ میں نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا پگلی، یہی تو ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے کسی کا استحصال نہیں کیا جا سکتا، یہ وہ واحد حق ہے جو اس کے اصل حقدار کو ہی ملتا ہے۔ تم میرے عقب میں رہو گی 10 قدم دور، وہ بایاں کونا دیکھ رہی ہو؟ میں نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ باڑ لوہے کے مضبوط سریوں کے سہارے لگائی گئی تھی۔ میں نے کہا کونے والا سریا پہلا ہے، وہاں سے گنو۔ 10ویں اور 11ویں سریے کی درمیانی جگہ کوئی بارودی سرنگ نہیں، ہمیں وہیں سے باڑ کے قریب پہنچنا ہے۔ میں کٹر سے تار کاٹوں گا، تم مجھے کور دو گی، عقبی حصے تک ہماری رسائی ہو جائے گی۔ پوشالی خاموشی لیکن نہایت توجہ سے میری باتیں سن رہی تھی۔ بولی تم مجھے پیچھے نہ پاؤ گے عامر، آگے چلو، تمہارا سایہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیا اور کچھوے کا سفر شروع کر دیا۔ اس کے باوجود دونوں پرڑوں کے درمیان بارودی سرنگوں کے ہونے کے امکانات صفر تھے، پھر بھی ہم انتہائی محتاط تھے۔ ذرا سی لغزش ایک خوفناک دھماکے کی صورت سامنے آ سکتی تھی، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہمارے چیتڑے ڈھونڈنے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد میں رک کر عقب میں پوشالی کا جائزہ بھی لے لیتا۔ وہ دھان پان سے مستقل مزاج لڑکی میرے پیچھے پیچھے تھی۔ ہر بار وہ اپنی روشن آنکھوں سے مجھے سب ٹھیک ہے کا اشارہ دیتی اور میں آگے بڑھنے لگتا۔ خدا خدا کر کے جان جوکھوں کا یہ سفر ختم ہوا۔ بارودی سرنگوں کا نصف علاقہ ہم پار کر آئے تھے، اب 100-150 گز اور تھے، جہاں محافظوں کے ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، البتہ عمارت کے ساتھ ساتھ ان کے گشت کے وسیع امکانات تھے۔ میں نے ہاتھ سے پوشالی کو ہوشیار ہونے کا اشارہ کیا اور بیلٹ میں اڑسا ہوا کٹر نکال کر تار کاٹنے میں مصروف ہو گیا، جو اس انداز میں لگائے گئے تھے کہ انسان تو کجا، چڑیا کا بچہ بھی اندر داخل نہ ہو سکتا تھا۔ اس کی بلندی بھی اتنی تھی کہ پھلانگا نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا یہ ہماری مجبوری تھی۔ میں نے نیچے کے صرف 5 جوائنٹ کاٹے، اب اتنی جگہ ہو گئی تھی کہ دونوں باری باری نیچے سے گزر سکتے۔ کٹر میں نے واپس بیلٹ میں اٹھا اور پوشالی کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ 2 منٹ بعد ہی ہم باڑ کے اندرونی علاقے میں رینگ رہے تھے۔ یہ بھی غنیمت تھی کہ بھارتیوں نے سرچ ٹاور نہیں بنائے تھے، ورنہ شاید اتنی آسانی سے اندر داخلہ ممکن نہ ہوتا۔ اللہ ہر قدم پر ہماری مدد کر رہا تھا۔ کچھ بھارتیوں کی بے وقوفی بھی کام آ رہی تھی۔ ریسٹ ہاؤس کی سیکیورٹی اتنی سخت نہیں تھی جتنی کہ مجھے بتائی گئی تھی۔ عمارت تک پہنچنے کے دوران ہمیں کوئی فوجی تو کیا، کوئی چڑیا کا بچہ بھی نظر نہ آیا۔ ہمارا رخ کچن کی طرف تھا، جس کی کھڑکی منصوبے کے مطابق ہمیں کھلی ملنی تھی۔ میں نے پوشالی کو چوکس رہنے کا اشارہ کیا اور خود زمین سے ذرا سا اٹھ کر پٹ دھکیلنے لگا۔ جو ہی میں نے اپنے جسم کو زمین سے اٹھایا، فضا گولی کی کڑی آواز سے گونج اٹھی۔ میں فوراً زمین پر گر گیا۔ گولی میرے سر کے بالوں کو چھوتی ہوئی گزری تھی۔ پہرے داروں کو ہماری موجودگی کی خبر ہو گئی تھی۔ جب تک وہ اسٹین گنے کندھوں سے اتارتے، پورا ریسٹ ہاؤس بھاری جوتوں کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ بہت سے لوگ دوڑتے ہوئے ہماری جانب آ رہے تھے۔ پوشالی، میں نے فوراً اس بہادر لڑکی کو مخاطب کیا جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چلا کرتی تھی۔ وہ فوراً میرے قریب آ گئی۔ میں نے جلدی دھیمی آواز میں اسے مخاطب کیا، ہم میں سے کسی ایک کو اندر داخل ہونا ہے۔ گولیاں اب تواتر کے ساتھ چلنی شروع ہو گئی تھیں۔ غنیمت تھا کہ ہم کچن کی نکاسی آب کی نالی کی آڑ میں تھے، جو زمین سے کچھ بلندی پر تھی، ورنہ کب کے چھلنی ہو گئے ہوتے۔ ہماری جانب سے ابھی تک فائر کا جواب نہیں دیا گیا تھا۔ میں نے کہا تم یوں کرو کہ کھڑکی کے راستے اندر داخل ہو جاؤ۔ کچن کے ساتھ دائیں جانب والے پہلے کمرے کو کمیونیکیشن روم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جہاں مواصلاتی آلات نصب ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ یہاں 15 سے 20 فوجی موجود ہیں، لیکن وہ مزید مدد طلب کر سکتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے کمیونیکیشن روم پر قبضہ کر کے مواصلاتی آلات کو تباہ کرنا تاکہ وہ کہیں اور رابطہ قائم نہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ والے کمرے میں ایجنٹ کو قید کیا گیا ہے، تم اسے باہر لے آؤ، میں باہر والوں کو روکتا ہوں۔ انہیں یہ شک بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اندر بھی داخل ہوا ہے، وہ یہیں الجھے رہیں گے۔ پوشالی بولی لیکن تم اکیلے؟ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوگا، بس تم جاؤ۔ اندر کی کارروائیوں کے سلسلے میں تم خود مختار ہو، جو چاہے کرنا، لیکن محتاط ہو کر۔ میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی ادھوری رہ جائے۔ پوشالی گھسٹ کر آگے آ گئی۔ میں نے اسٹین گن سے پہلا برسٹ فائر کیا، جواب میں 2 کریح چیخیں ابھریں۔
जिससे अंदाजा हुआ कि 2 दुश्मन कम हो गए हैं। साथ ही मैं तेजी से खिड़की से दूर होता चला गया ताकि उनकी फायरिंग का रुख बदला जा सके और पोशाली बहिफाजत अंदर दाखिल हो सके। दाएं जानिब मुझे एक भारतीय फौजी की झलक नजर आई जो हाथों पैरों के बल झुककर आगे बढ़ रहा था। मैंने 3 गोलियों का एक ब्रस्ट उसकी खैरियत मालूम करने के लिए रवाना किया। मौत के तीनों पैगाम्बर उसके चेहरे तक पहुंचे। वो चीखा, लेकिन चीख फौरन ही मादूम हो गई क्योंकि अगले ही लम्हे उसका जिस्म चेहरे से महरूम हो चुका था। मैंने उसे वहीं ढेर होते देखा। अब मैं खिड़की से कोई 30 गज दूर हटाया था। साथ साथ मैं फायर भी करता जा रहा था ताकि उन्हें मेरी पसपाई का अंदाजा होता रहे। मेरे सामने एक मोटा सा दरख्त आ गया। मैंने उसी के तने को आड़ के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया और जमकर फायरिंग का जवाब देने लगा। मेरी पुश्त बारूदी सुरंगों के इलाके की जानिब थी। इस तरह मैं दाएं बाएं नजर रख सकता था। दुश्मन दोनों तरफ से फायरिंग कर रहा था और मुझे सूरत हाल पर कड़ी निगाह रखनी पड़ रही थी, वरना कोई भी गोली मुझे मरहूम कर सकती थी। मैंने फायरिंग के दौरान किचन की खिड़की की तरफ देखा। पोशाली खिड़की की चौखट पर मुझे नजर आई। फौरन ही उसकी समत फायरिंग हुई। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया, लेकिन गोलियां पहुंचने से पहले ही वो अंदर कूद चुकी थी। मैंने सुकून का सांस लिया और दुश्मनों को ताकने में मसरूफ हो गया। अब मेरी तवज्जो बढ़ गई थी। आंखें बाहर निगरान थीं और दिल अंदर अटका हुआ था। शायद इसीलिए गिरदोपेश से जरा सा बेखबर हुआ और मारा गया। किसी ने अकब से मेरे ऊपर छलांग लगाई और मुझे साथ लिए जमीन पर गिरता चला गया। मैं जख्मी हो जाने वाले शेर की तरह पलटा। वो कोई हिंदू फौजी था जो मेरी बेखबरी में घूमकर मेरे अकब में जा पहुंचा था। चाहता तो मुझे गोली से उड़ा सकता था, लेकिन शायद वो मुझे जिंदा गिरफ्तार करने में दिलचस्पी रखता था। मैंने लौटकर सीधा होने की कोशिश की, लेकिन फौजी ने मुझे बुरी तरह बेबस किया था। मेरे हाथ उसकी गर्दन पर पहुंचने के लिए उठे, लेकिन उसने 3 घूंसे ताबड़तोड़ मेरे चेहरे पर बरसा दिए। मेरा दिमाग घूम गया। कहावतन नहीं बल्कि हकीकतन नानी याद आ गई। चेहरे पर लगने वाली ज़रबें इतनी शदीद थी कि मेरे हाथ ऊपर उठने की बजाय पहलियों में गिर पड़े। दायां हाथ बेल्ट से टकराया तो मुझे खंजर का ख्याल आया। मैंने अपनी बंद होती हुई आंखों को खोला और रही सही कुव्वत इरादी को मुजतमा करके खंजर बेल्ट से निकाला और उसकी बाईं पसलियों में घोंप दिया। फौजी के मुंह से भयानक चीख आजाद हो गई। खंजर दस्ते तक उसके पहलू में पैवस्त हो गया था। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई और वो फौरन ही एक जानिब लुढ़क गया। मैंने जमीन से पड़ी स्टेन गन उठा ली जो इस धींगा मुश्ती में गिर गई थी। खंजर भी उसके जिस्म से निकाल कर साफ किया और दोबारा बेल्ट में उड़स लिया। सामने की तरफ से 3 फौजी मुझे पेशकदमी करते नजर आए। उनके हाथों में राइफलें थीं, जिनसे निकलने वाले शोले मेरी तरफ भागते दिखाई दे रहे थे। मैंने स्टेन गन सीधी करके और ट्रिगर दबाकर उसे नीम दायरे में घुमा दिया। जाने कितनी गोलियां उनके जिस्मों में पैवस्त हो गईं। तीनों चंद लम्हों के लिए यूं उछले जैसे अफ्रीका का कोई जंगली रक्स कर रहा हो। आखिरकार वो जमीन पर गिरते चले गए। उसी वक्त मुझे इमारत के अंदर स्टेन गन चलने की आवाज सुनाई दी। फिर राइफल की गोलियां चली। यकीनन पोशाली का सामना दुश्मन से हो गया था। मैं फिक्रमंद तो हुआ, लेकिन मुझे यकीन था कि वो कामयाब लौटेगी। मैं उसे अल्लाह के हवाले करके दोबारा बाहर की तरफ मुतवज्जे हो गया। फौजी अब आड़ लेकर फायरिंग कर रहे थे। मैं भी महफूज था। वक्फे वक्फे से मैं स्टेन गन में नई बेल्ट लगाता और उंगली ट्रिगर पर रख देता। मौत फौरन ही कहे लगाने शुरू कर देती। एमुनिशन वाफिर मिकदार में था। मुझसे भिड़ने वाले भारतीय फौजी की ऑटोमेटिक राइफल भी करीब ही पड़ी थी। मैंने सोचा कि अगर वो होश में हुआ तो ये उसके काम आ जाएगी। इमारत के अंदर से वक्फे वक्फे से फायरिंग हो रही थी। बाज औकात चीखें भी उभरती, लेकिन इनमें कोई निस्वानी चीख नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे यकीन था कि पोशाली महफूज है। मैं खिड़की की तरफ भी देखता जा रहा था ताकि जब पोशाली वापसी के लिए आए तो मैं फायरिंग में तेजी कर दूं। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। पोशाली का स्याह साया मुझे चौखट पर नजर आया। मैंने फायरिंग तेज कर दी ताकि वो बहिफाजत नीचे कूद सके। पहले पोशाली ने नीचे छलांग लगाई और चंद सानियों बाद एक दूसरा साया कूदा। मेरे बदन में खुशी की लहर दौड़ गई। एजेंट न सिर्फ जिंदा बल्कि होशो हवास में था। लगता था भारतीयों ने उस पर तशद्दुद मौकूफ कर दिया था, या फिर वो इतना सख्त जान था कि तशद्दुद के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा था। मैंने हलक से फौरन परिंदे की मखसूस आवाज निकाली ताकि आने वालों को मेरी पोजीशन का इल्म हो सके। जवाब भी मुझे परिंदे की आवाज में ही मिला। फिर उन्होंने मेरी समत रेंगना शुरू कर दिया। चंद ही मिनटों में वो मेरे करीब आ गए और हमने बाढ़ की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। पोशाली और एजेंट को मैंने आगे रखा था। एजेंट की हालत बड़ी अबतर थी, लेकिन कुव्वत इरादी के बलबूते पर हमारा साथ दे रहा था। उसके चेहरे पर जाबजा खराशों के निशानात थे और लिबास भी कई जगह से मस्का हुआ था। उसने इंतहाई तशक्कुर आमेज निगाहों से मुझे देखा तो मैंने मुस्कुरा कर उसके हौसलों की दाद दी। मैंने पोशाली को कहा, ख्याल से आगे बढ़ना, बारूदी सुरंगों से बचकर। पोशाली ने मेरी बात काट दी। फिक्र न करो, मुझे याद है। और वो आगे की तरफ घिसकने लगी। एजेंट दरमियान में था जबकि मैं पीछे था।
चंद फुट घसीट कर मैं पलटता और फौजियों पर फायर झोंक देता, जिन्होंने अब हमारा ताकुब शुरू कर दिया था। मैं जल्द से जल्द बारूदी सुरंगों से पार निकल जाना चाहता था ताकि ताकुब करने वालों पर कारी ज़रब लगा सकूं। बाढ़ तक पहुंचने में हमें 10 मिनट लगे। उस वक्त तक भारतीय फौजी भी बारूदी सुरंगों के इलाके में दाखिल हो चुके थे। अब फाइनल एक्शन का वक्त आ गया था। पोशाली होशियार, मैंने उसे होशियार करने के लिए बुलंद आवाज में कहा। दूसरे हाथ से मैंने अपनी कमर पर बंद थैले से वो 3 दस्ती बम टटोले जो शायद इसी किस्म के काम के लिए अलिया ने मेरे हवाले किए थे। मैंने एक दस्ती बम निकाला, उसकी हिफाजती पिन खींची और पूरी कुव्वत से आने वालों की तरफ उछाल दिया। मैं दोबारा चीखा, भागो, और उठकर दौड़ पड़ा। दस्ती बम के फटने का धमाका कान फाड़ देने वाला था। कई चीखें उभरी, जिस्म उछलकर बारूदी सुरंगों वाले इलाके में गिरे और फिर पै दर पै धमाकों से पूरी वादी गूंज उठी। एक के बाद एक बारूदी सुरंग फट रही थी। इनका आपस में फासला इस कदर कम था कि एक सुरंग फटती तो चंद ही सानियों में दूसरी को अपनी लपेट में ले लेती। भारतीय फौजी अब आगे बढ़ने की बजाय पीछे भाग रहे थे, लेकिन दोनों तरफ मौत नाच रही थी। शायद ही उनमें से कोई बचकर वापस इमारत तक पहुंचने में कामयाब हुआ हो। मैंने भागते हुए बाकी दोनों बम भी निकाले और दाएं बाएं उछाल दिए। देखते ही देखते वहां भी कयामत उतर आई, लेकिन हम इस कयामत की पहुंच से महफूज थे। टीले के दामन में खच्चर बदस्तूर बंधे हुए थे। वो धमाकों से बदहवास जरूर हुए और शायद बिदक कर उन्होंने रस्सियां तोड़वाने की कोशिश भी की हो, लेकिन भारी पत्थरों की वजह से वो वहीं मुक़य्यद होकर रह गए थे। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उस महफूज खिताने की तरफ कूच करने का फैसला किया जिसके बारे में अलिया ने मुझे बताया था। जख्मी एजेंट को एक खच्चर पर सवार करवा दिया, जबकि पोशाली मेरे साथ बैठ गई। यूं सफर में कुछ सुस्त रवि आ गई, लेकिन ये भी गनीमत था। अलिया के बताए हुए ठिकाने पर पहुंचकर मैंने दोनों की रुदात सुनी। एजेंट पर बेतहाशा तशद्दुद हुआ था, लेकिन उस मर्द मुजाहिद ने तमाम तर अजियतों के बावजूद जबान न खोली थी। उसने मुझे ये भी बताया था कि कल सुबह उसे दिल्ली मुंतकिल किया जाना था। अगर मैं आज रात न पहुंचता तो उसका जिस्म किसी तंगो तारीख तहखाने में बतदरीज हड्डियों के सुरमे में तब्दील हो जाता। पोशाली ने रेस्ट हाउस के अंदर जाकर मेरी हिदायत के मुताबिक सबसे पहले कम्युनिकेशन रूम पर कब्जा किया। 2 अफराद वहां मौजूद थे। वो ट्रांसमीटर पर कोई पैगाम नशर कर रहे थे, लेकिन पोशाली की स्टैंड गन ने उन्हें पैगाम मुकम्मल करने की मोहलत न दी। 3 आदमी राहदारी में उसका निशाना बने, जबकि 2 उस कमरे के दरवाजे पर मारे गए जिसमें एजेंट को कैद किया गया था। रात के 3 बज रहे थे। वक्त इंतहाई नामुनासिब था, लेकिन चूंकि मिशन की तकमील के बाद मुझे फौरी तौर पर पाकिस्तान में अपने बॉस से राब्ता कायम करने की हिदायत की गई थी, इसलिए मुझे यकीन था कि बॉस मेरी कॉल का मुंतजिर होगा। मैंने ट्रांसमीटर निकाल कर ऑन किया, उसकी फ्रीक्वेंसी सेट की और मखसूस कोड वर्ड्स दोहराने लगा। चंद ही सानियों बाद मुझे बॉस की आवाज सुनाई दी। रिपोर्ट अंदाज सवालिया था और मैंने हत्तुल मकदूर अल्फाज में अपनी कारकर्दगी दोहरा दी। वेल डन। बॉस को एजेंट की रिहाई की खबर से बेहद खुशी हुई थी, क्योंकि एजेंट बहरहाल इंसान था और किसी भी मरहले पर वो ऐसी बातें उगल सकता था जिससे पूरे भारत में पाकिस्तान की जासूसी के जाल को सख्त धचका पहुंच सकता था। मैंने धीरे से दरियाफ्त किया, अब क्या प्रोग्राम है सर? बॉस ने कहा, तुम तीनों का काम अब खत्म हो गया है, लिहाजा फौरी तौर पर वापस आ जाओ। क्या मतलब? ये हुक्म मेरे लिए इंतहाई खैर मुतवक्के था। वो बोले, तुम पोशाली और एजेंट किसी न किसी तौर पर भारतीय खुफिया इदारों पर मुनकशिफ हो चुके हो, इसलिए अब वहाँ रहना इंतहाई खतरनाक है। वो किसी भी वक्त तुम लोगों पर हाथ डाल सकते हैं। किसी ताखीर के बगैर सरहद पर पहुंचो। फौज की खुसूसी गाड़ी वहां तुम्हारी मुंतजिर होगी, वो तुम्हें रावलपिंडी पहुंचा देगी। मैंने धीरे से कहा, ओके सर, और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मैं दिली तौर पर खासा मायूस हुआ था। मुल्क के लिए मेरी खिदमात का एक रोशन बाब खत्म हो गया था, लेकिन मुझे इस बात का ज्यादा दुख नहीं था, क्योंकि मेरे जहन में ये बात भी थी कि अब शायद मेरा हौसला उतना जवान नहीं रहा था कि सऊबतें बर्दाश्त करता। पोशाली की तरह मैं भी थक गया था और आराम चाहता था। अपने वतन की मिट्टी से लुत्फानंदोज होना चाहता था। वहाँ के बागों की सूंधी सूंधी खुशबुओं को खुद में समोना चाहता था। जाहिर है, एक इंसान कब तक खुद को सरगर्म अमल रख सकता है? जिंदगी तो एक दायरा है कि चलने वाला एक रोज लौट कर वापस उसी मकाम पर आ जाता है जहां से चला था, लेकिन खाली हाथ। और मैं भी आज उसी मकाम पर खड़ा था। शायद मेरा दायरा भी पूरा हो गया था। कल मेरी जगह लेने वाले और बहुत से आने वाले थे। खुद से पहले आने वाले की तरह मैं भी भारत से बहुत सी खौफनाक यादें अपने साथ ले जा रहा था। एक हसीन याद भी मेरे हमरकाब थी। मैंने दिल ही दिल में उसके साथ को मुस्तकिल बनाने का फैसला किया और एक नए अज़्म के साथ उठ खड़ा हुआ। दोनों साथी मेरी बात सुन चुके थे। फौरी तौर पर रवानगी के लिए तैयारी की गई। ट्रांसमीटर वगैरह तल्फ कर दिया गया, लेकिन असलहा हमने बदस्तूर अपने पास ही रहने दिया। सफ़र दोबारा शुरू हो गया। जब हम सरहद पर पहुंचे तो मशरिक से उजालों का देवता अपनी रोशन रोशन किरणों समेत हमारे इस्तकबाल को उभर रहा था, जिसने पूरी दुनिया को अपनी ताबनाकियों से मुनव्वर करना था।
میں نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی اور رخ پھیر کر پوشالی کو دیکھا جو میرے ہاتھ میں ہاتھ دیے قدم بقدم میرے ساتھ تھی۔ وہ بھی تو ایک سورج تھی جس نے میرے دل کی دنیا کو روشن کرنا تھا۔